Okay, Bismillah Rahman Rahim. So, in last lecture we discussed angular momentum in detail, and today we are going to start perturbation methods. You should be prepared mentally for it that we are going to discuss generally first from Gupta book, and then we will go to Griffith book to start perturbation properly. The title of the chapter is basically approximation methods. Yeah, approximate methods for bound state problems. What are bound state and unbound state? You already know it. We have discussed it. But today we are going to start in the development of quantum mechanics. Only a few sample physical problems like hydrogen atom, harmonic oscillator, and rigid rotator, etc., could be solved completely. Up to now, we have studied that we can solve hydrogen atom, we can solve harmonic oscillator or rigid rotator completely by these so-called developed quantum mechanical rules. But what we do, however, in practice, exactly, soluble problems are rare. We can't solve 100% a problem by using these laws. That is, for the majority of system of physical interest, the exact solution of Schrodinger equation present great mathematical difficulties. So we are facing great mathematical difficulties in Schrodinger equations. While solving all these, we need certain approximation methods. जिस तरीके से आप लोगों ने पहले उसको पढ़ा, श्रोडिंजर्स को, श्रोडिंगर इक्वेशन की सॉल्यूशन को थ्री डायमेंशन में, फिर उसकी यूजेस पढ़े हैं, उसको इस्तेमाल किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए ये काफी नहीं है, यानी हम इससे पूरा का पूरा सॉल्यूशन हासिल नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू permit the discussion of these systems, various methods of approximate solution of the wave equation have been devised leading to more or less accurate approximation, evaluation of energy values and wave function. So what we do, then we get approximate solution of the wave function and energy. ऑलरेडी जितने भी प्रॉब्लम आप लोग पढ़ चुके हैं उसमें आपने सॉल्यूशन किए हैं वेव फंक्शन की और एनर्जी की. लेकिन अब जो अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं या इन्हीं मेथड्स को भी देख ले, उसको भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमें उसकी भी जरूरत है, तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स इस्तेमाल करते हैं. यानी ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस होते हैं या अप्रोक्सीमेट इवैल्यूएशन होते हैं. ये 100% एक्यूरेट नहीं होते. क्वांटम मैकेनिक्स में हम कोई भी परफेक्ट आंसर मालूम नहीं कर सकते, बल्कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं. तो जितने भी आप लोगों ने अभी तक पढ़े वो भी आपके up to some extent आप उसको ठीक कह सकते हैं, not complete solution for it. So out of these methods, a simple and beautiful one is a wave mechanical perturbation theory developed by Schrodinger in 1926. So one of the best method for it is the perturbation method. There are also other approximation. कुछ मजीद approximation methods भी है हमारे पास जो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन what we have to focus mainly, यानी अगर हम ये एक मेथड भी सही तरीके से सीख ले, अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें पहला है परटर्बेशन, तो अगर हम परटर्बेशन थ्योरी को सब समझ ले, हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मालूम करेंगे इससे. once we know that, then we can study the other approximation method very easily. बाकी भी हमें बहुत आसानी से फिर समझ आएगी. So if the problem in hand is sufficiently similar to one that has an exact solution, आपके पास कोई exact solution है और जो problem आप study कर रहे हैं that has sufficiently similar, mean that it is similar to the exact solution, the Hamiltonian can be sorry, broken up into two parts, one of which is large and characterize the system for which the Schrodinger equation can be solved exactly, while the other part is small and can be treated as perturbation. Perturbation means disturbance. The part which has smaller disturbance, or you can say which is not similar, is known as perturbation part. यानी
हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें एक प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में लेंगे, यानी प्रॉब्लम से मुराद कि हम हैमिल्टोनियन को दो हिस्सों में लेंगे। एक उसका एग्जैक्ट पार्ट होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जिसका अवेलेबल है, और दूसरा उसका जो होगा वो स्मॉल हिस्सा होगा जो कि यानी द माइनर पोर्शन। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सिस्टम, 80% उसका जो आ रहा है वो एग्जैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, 20% या लेस देन दैट वो जो हम ले रहे हैं वो हम परटर्ब सिस्टम ले रहे हैं। यानी हैमिल्टोनियन के दो हिस्से करेंगे, एक हिस्सा एग्जैक्ट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो उसमें परटर्बेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके it has two types, two parts: time independent perturbation theory and time dependent perturbation theory. Hamiltonian does not depend on time in the first one and depends in the second term. So पहले में Hamiltonian time independent होगा और दूसरे में time dependent. So what we do now, we start time independent perturbation theory for non degenerate case. Now there are two cases, one is degenerate and the other is non degenerate. डिजेनरेसी क्या है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। सो सपोज वी हैव स्टडीड solve the time dependent independent Schrodinger equation for some potential which is h naught psi n naught e n naught into psi of n naught। यहाँ पे हमने ये स्मॉल नॉट उसके ऊपर लिखा, जहां पे अब ये स्मॉल नॉट या जीरो ऊपर आएगा, इसका ये मतलब है कि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको दे रहा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। जबकि हम जब 1 2 3 लिखेंगे तो वो फिर परटर्बेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट परटर्बेशन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। नाउ दिस इज एन इक्वेशन फॉर अ पोटेंशियल Schrodinger wave equation for a potential problem. Obtaining a complete set of orthonormal eigenfunction, this and the corresponding eigenvalues E n naught. Already ये चीजें आप पढ़ चुके हैं डिटेल में। Now we perturb the potential slightly. ये फिगर जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस फिगर को देख लें तो इस फिगर में आपके पास क्या है, ये वही पोटेंशियल है, लेकिन दरमियान में यहाँ पे एक स्मॉल हम्प हमने क्रिएट किया, स्मॉल हम्प उसमें आ चुका है। ये स्मॉल हम्प जो इसमें आ गया है, इट रिप्रेजेंट्स द परटर्बेशन पार्ट इन द पोटेंशियल। कि ये पोटेंशियल हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल कोई पोटेंशियल हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो अब तक जो हमने ली थी वो तो हमने आइडियल ली थी कि वो कंप्लीटली स्फेरिकली सिमेट्रिक है। मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाल ले लूं और बाल की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो वो उसके अंदर जो रीजन आ रही है वो बिल्कुल कंप्लीट स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम है। लेकिन एक्चुअल सिस्टम इस तरह नहीं होते, वो जरूरी नहीं है कि वो हर पॉइंट पर हर जगह पे सेम हो, उसमें लाजमी होगा कि कहीं ना कहीं पे वो उसमें प्रॉब्लम आएगा, कहीं पे वो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक जगह पे थोड़ी दूर जाके सेम होगी, थोड़े आगे जाके सेम होगी। तो ये आइडियल जो हम लेंगे वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली आर पर डिपेंड करेंगे एंड दैट विल बी एट द सेम डिस्टेंस। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो इस तरह नहीं होते। इस वजह से इसी सिमिलरिटी में हमने ये एक पोटेंशियल लिया है और इसमें एक स्मॉल हम क्रिएट किया है। वी वुड लाइक टू फाइंड द न्यू आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। So the general equation now becomes that H is the Hamiltonian and psi of n with the eigenvalue E and psi of n. The equation is not soluble exactly for this more complicated potential. Perturbation theory is a systematic procedure for obtaining approximate solution. And this gave us a systematic procedure for the approximate solution to the perturbed problem by building on the known exact solution to unperturbed case. Now, what we do, we are solving the perturbed system, but what we do, we take the exact known unperturbed solution. यानी हम एक सिमिलरिटी की तरफ पे जाकर यही सॉल्यूशन हासिल कर रहे हैं। जो अनपर्टर्ब सिस्टम होगा उसको हम लेंगे और उसी बेस पे हम ये पर्टर्ब सिस्टम की सॉल्यूशन निकालेंगे। सो उसके लिए जो न्यू हैमिल्टोनियन होगा वो क्या बन जाएगा? We write the new Hamiltonian as the sum of the two terms, that h equal to h naught plus lambda h prime. Here h prime is now the Hamiltonian of the perturbed system and h naught is the Hamiltonian of the exact possible solution system. Superscript O is for unperturbed system and prime is for the
परटर्ब सिस्टम नाउ, और ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जिस तरह आप लिखते हैं कि ए इक्वल टू बी प्लस सी लैम्डा, सो इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। एंड लेमडा क्या है? लेमडा इज अ स्मॉल पैरामीटर कैरेक्टराइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन, यानी लेमडा डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ कि ये परटर्बेशन कितनी है, इसकी ये कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लेमडा कैरेक्टराइज कर रही है। नेक्स्ट वी राइट साई ऑफ एन एंड ई एन एज अ पावर सीरीज। उस अब इसके लिए हम चूंकि हैमिल्टोनियन हमने लिख दिया, सो वो फंक्शन भी हम उसी में लिखेंगे, साई ऑफ एन इक्वल टू साइन ऑफ एन नॉट प्लस लेमडा साई ऑफ एन वन प्लस लेमडा स्क्वायर साई ऑफ, यही पावर सीरीज है। इसी तरह एनर्जी आइगन वैल्यूज भी हम उसी तरह पावर सीरीज में। सो इक्वेशन 5 and 6 gives you psi of n en, while equation 4 gives you Hamiltonian for the system. Here en1, अब देखो जिस तरह मैंने बता दिया कि जो नॉट है या जीरो है ये अनपर्टर्ब सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वन है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, जो सेकंड टू है वो थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करेक्शन, थ्री थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। हियर en1 is the first order correction to the nth eigenvalue, and psi of n1 is the first order correction to the nth eigenfunction. So en square and sin square are the second order correction and so on. Now putting equation 4, 5 and 6 in equation 3, जो जनरल इक्वेशन हमने लिखा था अब उसकी जगह पे ये तमाम वैल्यू ये इक्वेशन 3 है। So what we do, we put the values of h, we put the values of psi of n, en and psi of n। जब हम वो डाल देंगे, अब यहां पे h की दो वैल्यू है और ये पावर सीरीज में है, तो लाजमी बात है अब ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। प्रोडक्ट में जब जाएगा तो हम ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेंगे। आप ये लेफ्ट साइड पे पहले कर दो, ये अलग अलग हर टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह राइट साइड को कर दो, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लेमडा, अब दोनों साइड पर लेमडा की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे देखें, जब आप इसके साथ करेंगे एच नॉट साई ऑफ एन नॉट प्लस लेमडा, यानी ये मल्टीप्लिकेशन करके इसको रीअरेंज करें, लेमडा उससे कॉमन ले, लेमडा इनसे कॉमन ले, इसी तरह लेमडा स्क्वायर कॉमन ले, फिर लेमडा क्यूब कॉमन ले, दूसरी साइड पर भी इसी तरह करें, एंड देन इक्वेट द कोएफिशिएंट्स लेमडा के। अब जब लेमडा के जीरो के कोएफिशिएंट मतलब लेमडा पावर जीरो अगर हो तो पहला पहला टर्म आ जाएगा, दैट इज एच नॉट साई ऑफ एन नॉट ई एन नॉट इंटू साई ऑफ एन नॉट, और ये अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन है हमारे पास, ऑलरेडी आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। ए दूसरा जो है वो लेमडा वन के लिए वो बन जाएगा एच नॉट साई ऑफ एन वन एच प्राइम साई ऑफ एन नॉट प्लस प्लस इक्वल टू ई एन नॉट साई ऑफ एन वन प्लस ई एन वन एंड साई ऑफ एन नॉट, दैट इज इक्वेशन 7 नाउ। इसी तरह लेमडा स्क्वायर की पावर जो है वो आप इक्वेट कर ले लेमडा स्क्वायर की कोएफिशिएंट को, तो आपके पास इक्वेशन 8 आ जाएगा। अब ये तीन इक्वेशन है, मजीद मैं हासिल कर सकता हूं अगर मैं लेमडा क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट करूं, लेमडा 4 के करूं, अप टू सो ऑन। नाउ व्हाट वी डू, अब यहां से ये इक्वेशन जो मेरे पास आ गए, अब इससे मैं करता हूं, अब इसमें मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थर्ड तमाम मौजूद है। व्हाट वी डू, फर्स्ट वी स्टार्ट, या मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि वी आर इन द नॉन डिजेनरेट स्टेट। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन थ्योरी, एनर्जी और वेव फंक्शन उसके लिए मालूम करना है। सो टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 7 विद साई ऑफ एन नॉट, हम दोनों तरफ से साई ऑफ एन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ब्रा नोटेशन में, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय साई एन नॉट स्टेरिक, यानी उसकी कंजुगेट फॉर्म को उसके मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको कर लेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन 7 है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वही इक्वेशन है, एच नॉट इज हर्मिशियन, एच नॉट हर्मिशियन है, अगर हर्मिशियन है तो वो आपको पता है कि उस पर फिर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी डायरेक्ट ई एन वैल्यूज आ जाएगी। तो आप एच नॉट को कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये कि यहाँ पे एच नॉट इसके साथ है, किट नोटेशन में एच नॉट आप ब्रा में लिख सकते हैं क्योंकि स्टेरिक से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज हर्मिशियन। और दूसरे साइड पे जो ई एन है वो ई एन इनसाइड है, वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आ जाएगा, यानी ये वो इसके, यानी ये पहला टर्म और ये टर्म ये बराबर है। अगर ये बराबर है, व्हाट वी डू, एंड दिस cancels the first term on the right, moreover यानी साई ऑफ एन नॉट और साई ऑफ एन नॉट ये तो 1 के बराबर है,
तो जब ये तमाम वैल्यूज आप ऊपर पुट कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई इन वन, एनर्जी करेक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, वो बराबर है साई ऑफ इन नॉट एच प्राइम साई ऑफ इन नॉट एच प्राइम। एच प्राइम क्या है? इट इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द पर्टर्ब सिस्टम। इट सेज दिस, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी इज इट is the expectation value of the perturbation in the unperturbed state. Unperturbed state है psi ऑफ इन नॉट, unperturbed wave function है। तो और यहाँ पे h प्राइम जो है ये perturbed सिस्टम के लिए है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये देखे एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप किस तरह लिखते थे? psi ऑफ इन नॉट इंटू एक्स इंटू psi ऑफ इन नॉट। तो ये x की एक्सपेक्टेशन की तरह लिखा हुआ है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द unperturbed सिस्टम इन द of the perturbed system in the unperturbed states। states जो आपके हैं वो unperturbed है, मतलब ये कि वही psi ऑफ इन नॉट है, और ये जो वैल्यू है ये perturbed है। तो इस वजह से we say that this is the expectation value of the perturbed system in the unperturbed state। now first order correction to wave function, ये एनर्जी के लिए निकल आया। अब wave function के लिए करते हैं वही इक्वेशन 7 ले ले, इससे psi ऑफ इन कॉमन ले ले दोनों साइड पे। the right side is known function, ये h prime minus en1। so this amount to an inhomogeneous differential equation for psi of n1। now the unperturbed wave functions constitute complete sets, so psi of n1 can be expressed as a linear combination of this। ये ऑलरेडी आप उसमें जब हमने चैप्टर 3 और 4 स्टार्ट किया था उसमें आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए इक्वेशन लिखे थे वो फंक्शन के, वही हमने लिए। यानी वी कैन राइट इट इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट, क्योंकि n यहाँ साइन के साथ n है, तो हमने दूसरे जब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रोड्यूस किया है तो उसमें हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया। यही क्वेश्चन 11 आप उठाकर वही उसमें वापस पुट कर ले, ये इसकी जगह पे आ गया। जब ये इसकी जगह पे आ गया तो आप इसको अब अलग अलग कर ले दोनों के साथ और फिर रिजॉल्व कर ले, और इसका इनर प्रोडक्ट सही आप L0 के साथ ले ले, यानी एक दूसरे फंक्शन उसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ ब्रायन किट नोटेशन में। अब कंडीशन आते हैं कि अगर L और N बराबर हो तो कंडीशन होगा कि ये लेफ्ट साइड जो है ये 0 बन जाएगा, और अगर बराबर नहीं है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। जब बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन आ गया, और इसी बेस पे हमने कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया c, वो जो हमने लीनियर में इस्तेमाल किया। अब यही वैल्यू उठाकर psi1 की वैल्यू में पुट कर दे वहां कोएफिशिएंट की जगह पे, तो आपके पास वेव फंक्शन आ गया। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन psi ऑफ n1, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही अनपर्टर्ब एक्सपेक्टेशन वैल्यू है डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज है, और psi ऑफ m0 वही अनपर्टर्ब सिस्टम की वेव फंक्शन है। अब यहाँ पे ये नीचे वैल्यू जो है ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 होगी दिन m और n बराबर होगी। अगर m और n बराबर हो जाए तो फिर तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा वो फंक्शन, तो ये तो बराबर नहीं होगा तब ऐसा होगा। एज लॉन्ग एज द अनपर्टर्ब एनर्जी स्पेक्ट्रम इज नॉन डिजेनरेट, ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम स्टेट ही नहीं है। हमने कहा कि वी आर स्टडीइंग द केस ऑफ नॉन डिजेनरेट स्टेट। अब अगर डिजेनरेट स्टेट होगा तो सेम एनर्जी लेवल होगा, तो फिर psi ऑफ n और psi ऑफ m हम बराबर लेंगे, और En और Em भी बराबर होगा, तो फिर तो ये इक्वेशन जो है ये इनफाइनाइट बन जाएगा। So for the two different unperturbed states sharing the same energy, we need degenerate perturbation theory। यानी अगर अब हमारे पास ये तो हमने अनपर्टर्ब स्टेट के लिए कैलकुलेशन की है इन टर्म ऑफ पर्टर्ब स्टेट के लिए कैलकुलेशन की है इन टर्म ऑफ अनपर्टर्ब स्टेट्स, ठीक है ना। अब ये क्या है? फॉर द टू अनपर्टर्ब स्टेट, ये जो हमारे पास है शेयरिंग द सेम एनर्जी, अगर ये डिजेनरेट स्टेट हो, सेम एनर्जी होगी तो फिर डिजेनरेट स्टेट होगा, या डिजेनरेट स्टेट होगा तो सेम एनर्जी होगी। तो अब हमें वही चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे, वो हम इसके बाद करेंगे। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेव फंक्शन और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एनर्जी मालूम की है। अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, स्टिल वी आर इन द नॉन डिजेनरेट स्टेट, ये बात जहन में रखें। तो हम वही इक्वेशन 8 लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं psi ऑफ n0, ये लेमडा स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट से इक्वेशन बना था वो सेकंड ऑर्डर उसमें था, तो इस वजह से हमने अब वही इक्वेशन लिया
और उसको मल्टीप्लाई किया है उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया, ठीक है ना। अब दोबारा हम इसको उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह हमने पहले किया। हर्मिसिटी ऑफ एच नॉट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर होंगे, इसी तरह ये दोनों बराबर। तो जो फर्स्ट टर्म है दोनों उस दोनों साइड पे वो कैंसिल हो जाएंगे, और मीनवाइल ये दोनों हमारे पास 1 के बराबर है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। और हमारे पास जो फॉर्मूला रह जाएगा सिर्फ ई एन स्क्वायर के लिए रह जाएगा, और दैट इज इक्वल टू नाउ साई ऑफ एन नॉट एच प्राइम साई ऑफ एन वन। अब यहाँ पे देखें साई ऑफ एन नॉट और यहाँ पे आ गया साई ऑफ एन वन। नाउ दिस इज द वेव फंक्शन जो कि परटर्ब स्टेट के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पे ई एन वन उसके साथ वो पहला करेक्शन भी आएगा, साई ऑफ एन नॉट इंटू साई ऑफ एन वन। अब ये इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देख लें तो इसमें दोनों आ गए, इसमें वेव फंक्शन जो है वो अनपर्टर्ब स्टेट की वेव फंक्शन भी मौजूद है ये, और पर्टर्ब स्टेट की वेव फंक्शन भी मौजूद है, और साथ में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वैल्यू ऑफ एनर्जी भी मौजूद है। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन में ये दोनों आ गए। इसी तरह वेव फंक्शन में हम ले लेते हैं कि साई ऑफ एन नॉट और साई ऑफ एन वन। अब ये तब बराबर होगा जब ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस पे अप्लाई हो। अगर ये बराबर हो दोनों वेव फंक्शन तब वैल्यू सेम आएगा, लेकिन अगर ये बराबर ना हो तो ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि बिकॉज द सम excludes m equal to n and all the other orthogonal, so orthogonality condition इस पे अप्लाई हो गया। en की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर? en की वैल्यू हमारे पास इसी फॉर्म में आएगी। अगर इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर ले तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ये इसमें वापस वही कैलकुलेशन en की जगह पे वैल्यू पुट की गई है और कुछ नहीं है। ऊपर जो इक्वेशन में en था उसकी वैल्यू हमने इस्तेमाल किया। सो जो en है वो फाइनल फॉर्म में इसी हालत में आ जाएगी इक्वेशन नंबर 15 में। This is the fundamental result of second order perturbation theory. Similarly, you can find the second order correction to wave function. जिस तरह हमने ये किया उसी तरह आप इसको दोबारा कर सकते हैं। अब इसके बाद है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पर डिजेनरेट केस। वो पहले तो हमने जो पढ़ा वो तो हमने नॉन डिजेनरेट केस पढ़ा, अब हम डिजेनरेट केस पढ़ेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, क्योंकि पहला आप लोग वो कर ले, वो दोनों सॉल्व कर ले, देन आई विल गो टू द डिजेनरेट स्टेट, और फिर उसके बाद हम उसमें जाएंगे, ठीक है। सो वी विल फिनिश इट टुमारो इंशाल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? आज फ्राइडे है तो इस वजह से मैंने आप लोगों का लेक्चर शॉर्ट कर दिया है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश। एनीवन? नहीं है? ओके, फिगर नहीं नजर आया, ठीक है। तशफीन नो सर, ओके दैट्स गुड। ओके, सो फिर इसको दोबारा सुन ले, इस लेक्चर को भी पढ़ ले। लेक्चर का आपने पूछा कि तमाम मैंने ज्यादातर लेक्चर अपलोड किए, लेकिन कल वाला जो लेक्चर था वो नहीं किया, वो आज अपलोड कर दूंगा और ये वाला भी साथ कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको दोबारा पढ़ ले, और फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और या जो कल वाला क्लास होगा फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे।